Hello guys, how are you? I hope that you guys are doing well. So I welcome you to this Sure Shot Academy classes in which my name is Rahul and I will be taking general science for you guys. And today we are going to learn about states of matter. Now, in AFCAT examination, you need to think that general science is a very easy topic which comes. Also, you guys know 10th class का basic. Fine. Till 10th class science, if you do, that's more than sufficient for the AFCAT examination. And AFCAT examination is considered to be the most easiest examination in the defense examination if you want to consider. Fine. And general science K, you can expect around 2 to 3 questions in that examination, which will be held 3 months from now. Fine. So today, without wasting much of our time, what all things we are going to cover. सबसे पहले, what is matter? Fine. कि मैटर क्या होता है, केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है ये, तो मैटर से स्टार्ट करेंगे हम. फाइन. उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर कौन से है? दैट इज लिक्विड, फिर सॉलिड एंड देन गैसेस. फाइन. वो चीज के बारे में देखेंगे. फिर उसके बाद एटॉमिक व्यू ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, ये कैसे दिखते हैं वो सारी चीज बताऊंगा. फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जो प्रॉपर्टीज है लिक्विड की, फिर उसके बाद गैशियस की, फिर उसके बाद सॉलिड की, ये सब जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे. एंड देन वी गो फॉर द कन्वर्जन्स ऑफ मैटर्स. नाउ कन्वर्जन्स ऑफ मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज this year AFCAT 1 2021, the question was asked from this topic, and it's a very basic question. It will require hardly 2 to 3 minutes for you to understand that topic, and that question has granted 3 marks. Is a very crucial marks, right? So this is done, and then some important points, the points which are being left out, which has to be discussed in the class, that I will be discussing, and then some homeworks that I will be going to give you, and it's your duty to answer that in the comment box, and I will be discussing for that question in the coming classes. Fine. So this is a nutshell which we are going to, and I have got main points which are very important, so that you should not be worried at the last कि मुझे क्या पढ़ना है. Fine. You should not revise from the whole. I will be giving you the important things which are very important as far as AFCAT examination is concerned. Are you preparing for defense written exams like NDA, CDS, AFCAT, or Sainik School entrance exam? Join our written exam preparation courses, practice mock tests, and get expert mentor support. Call us at 725 940 7111. Okay. First, what is matter, which you need to remember at this time? Look, for the definition, matter is anything that has mass and occupied space. जिसके जो चीज, वो सारी चीज जिसके पास मास है और एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है. लेट इट बी अ वेरी टाइनी पार्टिकल और लेट इट बी अ ह्यूज मास वाला पार्टिकल, ऑल थिंग्स कम्स इन द मैटर. फाइन. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मास है और जिसका स्पेस है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसको बोलते हैं. फाइन. सेकेंड पॉइंट, एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हियर, taste and smell is matter. For example, I can touch this laptop, I can touch this mouse, I can touch the wood, I can touch the earphones, made up of matter. I can see you and you can see me. I am also made up of matter, and you are also made up of matter. Or anything I see, I cannot see air, but I can feel the air, right? So that is also there. Here, whatever I hear, for example, I hear the sound, you are hearing sound. So what is it? Is propagating some waves, consist of matter. I taste some delicious food, it contains of matter. Fine. It is made up of matter. I can smell something, I can smell something which is being cooking, so that is matter, that is made up of matter. Fine. So third point comes is, it is made up of tiny particles which cannot be seen through the eye. Naked eye से आप definitely नहीं देख सकते हैं. छोटी चीजों से बन के बनता है. For example, atoms and molecules. Now atoms and molecules क्या होता है कि atoms, आप देखो, when you take a small piece or any small piece, and when you go on further dividing that small piece, the stage will come there at that time where you will not be able to further divide it. Fine. So that state is called as atom. Now combination of atoms is called as molecules. Now that atom is nothing but made up of matter.
Fine. Everything around us, everything you can see, we can hear, everything which is being there is made up of matter. The universe is made up of matter. You can say that. Fine. Matter can be classified as solid, liquid, and gas based on the interparticle forces. Definitely, we will be studying in the later slides. Interparticle forces and the arrangement of the particles. Fine. Any object which you have is made up of small particles, and those small particles have their intermolecular or interparticle forces in between them. Now, that forces is going to define to which of the like it comes under solid or liquid or gas. Fine. That characteristics is going to decide in which of the matter it comes under. Fine. So and the arrangement of particles कैसे arrange है वो चीज decide करने वाली है सॉलिड है या लिक्विड है गैसियस है. ठीक है. अभी देखो, मैं बताता हूँ. अभी देखो क्या होता है कि आप कोई भी फॉर्म को, मतलब जैसे कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर है, फॉर एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे. फाइन. ये चीज समझ में आई. सॉलिड से लिक्विड अपने आप नहीं हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आप एक्ट कर रहा है, या लिक्विड से ही लिक्विड से गैसियस नहीं बन जाएगा अनटिल अनलेस यू आर नॉट प्रोवाइडिंग सम एक्सटर्नल एनर्जी. फाइन. डिड यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट? यही चीज बताना चाह रहा है. By increasing or decreasing pressure and temperature. Now, pressure and temperature is a form of energy. Fine. ये चीज आप जानते हैं. For example, ice can be converted from solid to liquid by increasing the temperature. Definitely, एक ice candy है, ice cube है, उसको आप liquid में कैसे convert करोगे? उसको heat करोगे. Heat is a form of energy. So आप energy provide कर रहे हो तब जाके वो water में liquid में convert हो रहा है. Fine. So ये चीज है matter. Now I think that you have understand the topic matter in a nutshell. आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा. I'm sure by the end of the lecture you'll definitely understand everything in detail. That's my promise. I want you to watch this video fully. Fine. And look for the other educators also. They are being teaching very well. Fine. So going further. Now three states of matter. Now you can see three states of matter. सबसे पहले you can see the cursor over here. First, solid. सबसे पहला solid क्या होता है? Particles in a solid are tightly packed and usually in a regular pattern. For example, कोई भी, अब जैसे देखो ना, कोई भी हार्ड पार्टिकल है अपने पास, वो हार्ड पार्टिकल इज गोइंग टू रिमेन हार्ड पार्टिकल अनटिल अनलेस आप कोई उसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो. और हार्ड पार्टिकल को कन्वर्ट करना, दैट सॉलिड को हम हार्ड पार्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर की जो पार्टिकल्स है वो एकदम टाइटली रिजिडली बाउंडेड है. उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, दीज आर वेरी स्ट्रांग. These do not let go easily. Fine. That's why the solid particle is very rigid. Let's see what is written some more. Particles in a solid will vibrate but cannot move past each other. That is the thing which I was trying to explain you right here. So you cannot, the particles cannot surpass each other. वो vibrate कर सकते हैं. Fine, आप vibrate करवा सकते हो, but it cannot surpass each other or it cannot break until unless external force is very much. Fine. And the third point, solids retain their shapes. Means solid अपनी shape में ही रहते हैं, definite shape में ही रहते हैं comparatively. Now what all things I'm saying is comparatively liquid and gaseous. Fine. Solid आप समझ चुके हैं अभी क्या है. Now liquid. Coming back to the liquid. Liquid में क्या है? Particles in a liquid are close together with no regular pattern. There is no regular pattern in a liquid. Now this irregularity in pattern is the reason why the water flows. समझ में आया? Now this is a common question no one knows, but I want to be the one who wants to clear this topic to you. कि why water flows? If someone asks you why water flows, what is the answer? Now if you know chemistry, if you know, if you have seen, if you heard me now, then you know कि the interparticle forces are like the particles in between in the liquid is not of a regular pattern. That's why they flows. समझ में आया? This is very basic thing है, you should know. Fine. Particle in a liquid flows and can easily move or slide past one another. That's why it is called as liquid. कि एक के ऊपर एक जा सकते हैं, मतलब पानी के ऊपर आप पानी डाल सकते हैं and then वो घुल मिल जाता है.
फाइन, हिंदी में अगर बोलूँ मैं तो, ठीक है, वो चीज़ है। फिर लिक्विड एज्यूम द शेप ऑफ देयर कंटेनर्स। नाउ ये एक चीज़ है जो कि बहुत अच्छी है। फ्लूइडिटी जो होती है लिक्विड की, वो कोई भी शेप ले लेती है। अगर मैंने पानी को ग्लास में डाला, इट विल टेक अ शेप ऑफ द ग्लास, एंड if I pour the water into a bowl, then the water is going to take the shape of the ball. आइस कैंडीज आप क्यूब के फॉर्म में करते हैं तो क्यूब के फॉर्म में बनता है। अगर आप ग्लास में रखेंगे पानी फ्रीजर में, तो आप वो ग्लास के शेप का वो आइस बन जाएगा। सो वाटर टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। Fine. So it do not have a regular shape. Definitely वही चीज justify कर रहा है. So now you know the liquid. Now comes to the gases. Particle in the gas are well separated with no regular pattern. Now these are well separated. मतलब randomly यहाँ से वहां से यहाँ घूम रहे होते हैं. Fine. कहीं पर भी घूम रहे होते हैं और there is no intermolecular forces. Like negligible आप बोल सकते हैं. Fine. Intermolecular forces is very high in terms of solid. Compared to solid, it is very less in liquid, and compared to liquid, it is very negligible. Like there is no intermolecular forces only in the gaseous state, gaseous states. Fine. अभी तक समझ में आया. Particles in a gas vibrates freely at high speed. पार्टिकल्स इन अ गैस वाइब्रेट्स फ्रीली एट हाई स्पीड, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इसलिए हवा देखो ना, हवा यहाँ से वहां घूम रही होती है। गैस आप कोई भी, जैसे आग जल रही है तो उसकी जो धुआं निकलती है वो हवा में उड़ जाती है, बहुत फास्ट रहती है। फाइन। कंपैरेटिवली लिक्विड, लिक्विड इतने फास्ट नहीं जाएगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से हाई लेवल से लोअर लेवल तक ही जाएगी, वो कभी उल्टा नहीं हो सकता, और सॉलिड तो कभी मूव ही नहीं होगा। फाइन। सो ये चीज है, ये चीज आपको समझना है। ठीक है। नाउ आई थिंक यू नो दी डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर। फाइन, ये समझ में आ गया आपको। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट। नाउ दिस इज द एटॉमिक व्यू ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। फाइन। नाउ देखो, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, इट हैज अ डेफिनाइट शेप। नाउ these shapes are never going to change. This is a container, definitely this is a container, but does the intermolecular molecules take in the shape of the container? No, right? Because it is bounded by its own structure. Same structure में बैठा हुआ है, वो चेंज नहीं कर रहा है अपना शेप। That's why it is called as solid. Fine. Now this is a liquid. Liquid देखो, now this is a container. Now ये कंटेनर के शेप में जा रहा है, जितना पानी है लिक्विड, मतलब पानी नहीं लिक्विड है, तो वो पूरा नीचे फैल गया है। सो दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड। जो मॉलिक्यूल्स है उसका डेफिनाइट शेप नहीं होता और वो कहीं पर भी बहने लग जाते हैं। नाउ गैशियस का देखो, नाउ गैशियस कहीं पर भी रैंडमली मूव होते हैं, यहाँ से वहां से यहाँ। दिख रहा है आपको, कहीं पर भी बॉल वगैरह सब घूम रहा है। सो ये चीज है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको फिर आइडिया हो गया होगा कि मैटर क्या है और उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। फाइन, विल गो फॉर नेक्स्ट नाउ। नाउ लेट अस टेक सम theoretical knowledge. Matter in the solid state maintain a fixed volume and shape. वही चीज बताया मैंने, 3 स्लाइड से वही चीज बता रहा हूँ। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और शेप होता है, सेम उसका डेफिनाइट शेप होता है। फाइन। विद कंपोनेंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन क्लोज टुगेदर एंड फिक्स्ड इनटू अ प्लेस। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, मैटर इन द लिक्विड स्टेट मेंटेन अ फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम रहता है, लिक्विड का हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है, बट हैज अ वेरिएबल शेप, मतलब अलग अलग शेप में ले सकता है। पानी एक ग्लास से आप दूसरे बॉल में डालोगे तो पानी उतना ही रहेगा, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा, है ना, वो चीज है। दैट अडेप्ट्स टू फिट इट्स कंटेनर, डेफिनेटली। फाइन। फिर उसके बाद, इट्स पार्टिकल आर स्टिल क्लोज टुगेदर बट मूव फ्रीली, मतलब क्लोज उतने होते हैं लेकिन फ्रीली मूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू दी सॉलिड्स। ठीक है, और मूव फ्रीली मूव नहीं होते उतने जितने गैसियस मूव होते हैं। ठीक है, कंपैरिजन में आप समझेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। फाइन, वो चीज हो गया। अभी हमने ये सेकंड पॉइंट भी देख लिया। लिक्विड आप कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। और हमेशा याद रखना कि लिक्विड जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ही फ्लो करता है। कभी आपने देखा है नदी जो है, नदी पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है? नहीं ना, पहाड़ से उतर रही है, नीचे बह रही होती है ना नदी। सो पानी कहीं पर भी आप फेंकेंगे तो नीचे ही जाएगी, ऊपर तो आएगी नहीं। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ओवर हियर which this slide is trying to tell us. Okay, the third point, matter in the gaseous state has both variable volume and shape. वॉल्यूम भी अलग हो सकता है और शेप भी अलग हो सकता है। ठीक है, जब उसकी टेम्परेचर हाई है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम रहेगा, और टेम्परेचर जब लो है जब उसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, डेफिनेटली। अडेप्टिंग बोथ टू फिट इट्स कंटेनर,
ठीक है, वो भी अपने कंटेनर को फिट करेगा। इट्स पार्टिकल आर नीदर क्लोज टुगेदर नॉर फिक्स्ड इन अ प्लेस, वो कहीं पर भी रैंडमली यहाँ से वहां घूम रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भाई, ये तो आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि मैटर क्या है। ठीक है, नाउ ये प्रॉपर्टीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। You can now download the SSB SureShot app from Google Play Store to access online courses related to SSB, personality development, and written exams like NDA, CDS, FCAT, and plenty of other preparation material. For a limited time period, you can apply the coupon code SureShot20 to get a flat 20% discount on all the courses. Hurry up and become a part of the SureShot family. ठीक है, देखो अभी प्रॉपर्टी, शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम होता है। देखो अभी ये हो गया फिक्स्ड शेप। ठीक है, फिर उसके बाद लिक्विड का क्या है, नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप, कोई शेप नहीं होता है उसका, कहीं पर भी शेप ले लेता है। नीदर गैस का क्या है, नीदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। ठीक है, फिर उसके बाद एनर्जी, एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है, सबसे लोएस्ट होती है। लोएस्ट मतलब क्यों लोएस्ट होती है, क्योंकि कोई मूव ही नहीं कर रहा ना यार, कोई मूव ही नहीं करेगा वो। फिर उसके बाद मीडियम, कंपैरेटिवली आप अगर कंपेयर करना चाहेंगे सॉलिड से, तो उसकी लिक्विड की बहुत मीडियम होती है एनर्जी, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है किसकी, गैशियस की, क्योंकि हर जगह उड़ रहा होता है वो, कहीं पर भी उसको उड़ मतलब यू डोंट नो वेयर इट इज गोइंग, फाइन। सो इसलिए उसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होता है। फाइन, ये चीज हो गया। कंप्रेसिबिलिटी, नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू कंप्रेस अ सॉलिड। आप एक आयरन बार को लो एंड ट्राई टू कंप्रेस इट, इट इज वेरी नियर टू डिफिकल्ट फॉर यू until unless you don't give some external energy, right? So it's very difficult to compress the solid. It's also nearly difficult for you to compress the liquid, but it is easier than solid. Now when I say that easier than solid, that doesn't mean that it is easy. I'm telling you in comparison with solid it is easy, but it is also near to difficult. आप ये समझ सकते हैं, and it is easy for the gas to compress, like it is easy for the gas to compress, यार easy comparatively. ठीक है, now arrangement of the molecules, arrangement of the molecules in terms of solid, you have regular and closely arranged. मतलब एक रेगुलर डेफिनेट पैटर्न होता है, डेफिनेट शेप होता है, एंड वॉल्यूम शेप होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, रेगुलर एंड क्लोजली अरेंज्ड। क्लोजली अरेंज मतलब वो चिपके होते हैं। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप यहाँ देख सकते हैं ना, ये देखो, ये देखो, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इन दोनों के बीच में दोनों चिपके हुए हैं, सारे एक दूसरे के चिपके हुए हैं। ठीक है, तो आप ये चीज ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर देखो आप गैशियस में दो दो चीज के बीच में ना बहुत सारा डिफरेंस, और ये कहीं पर भी उड़ जा सकता है, कहीं पर भी। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ये कहीं पर भी जाएगा अपने एनर्जी के साथ। ठीक है, सो ये चीज हुआ। रैंडमली एंड सेपरेट इन टर्म्स ऑफ लिक्विड, इट इज रैंडम एंड लिटिल स्पार्सली अरेंज्ड, मतलब ओके ओके अरेंज होता है, वो अपने कंटेनर के शेप ले लेता है। फिर उसके बाद रैंडम एंड मोर स्पार्सली अरेंज, मतलब कहीं पर भी घूम रहा होता है। वही चीज मैं वापस बार बार बता रहा हूँ ना, दीज आर टर्म्स विच यू नीड टू रिमेंबर। फ्लूइडिटी, कैन नॉट फ्लो, सॉलिड कभी फ्लो नहीं मतलब फ्लो नहीं कर सकता। फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, यही चीज मैं बता रहा धीरे से। फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ऊपर भी ट्रैवल करता है वो, नीचे भी ट्रैवल करता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। मूवमेंट देखो, मूवमेंट, मूवमेंट क्या है, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है, कोई मूवमेंट नहीं होगी अंटिल अनलेस आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। गाइस मैं आपको एक्सटर्नल फोर्स बोल रहा हूँ, मतलब क्या है कि अगर आपको सॉलिड से कन्वर्जन जो है मैं लेटर स्लाइड्स में पढ़ाऊंगा, तो आप अगर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा तब मैं बताता हूँ। ठीक है, नाउ मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ लिक्विड, इट डिपेंड्स ऑन द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। फाइन, द विस्कोसिटी भी प्ले करती है। विस्कोसिटी इज अनदर टॉपिक विच आई विल डिस्कस इन सम अदर क्लास डेफिनेटली। बट जितना गाढ़ा, जैसे आप हनी को लो और वाटर को लो, तो हनी की जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज्यादा है वाटर से। ठीक है, और वही चीज है वोलेटाइल सब्सटेंस, बहुत सारी चीजें साइंस टर्मिनोलॉजीज है, ये चीजें आने वाली क्लास में डेफिनेटली आप समझ जाएंगे। बट इस क्लास में आप इतना समझो कि जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से, अट्रैक्शन से। ठीक है, फ्री एंड कांस्टेंट एंड रैंडम, कहीं पर भी घूम रहा होता है गैस। ठीक है, आप समझ चुके हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस, जो पार्टिकल के स्पेस है, देखो ना यार वही चीज दिखाई, इसमें आपको कहीं पर भी स्पेस दिख रहा है क्या इन दोनों में? नहीं ना, कोई भी इंटर पार्टिकल में कोई भी स्पेस नहीं दिख रहा है आपको, हालांकि इसमें भी नहीं दिख रहा है आपको स्पेस। ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली इसके इसमें बहुत ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली
सॉलिड के आपको ज्यादा दिखेगा स्पेस, और यहाँ पर देख सकते हैं हम गैशियस में बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। ठीक है, तो ये चीज हो गया मोर एंड लार्ज। ठीक है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन यहाँ पर मैक्सिमम है, क्योंकि दे आर क्लोजली बाउंडेड टू ईच अदर, दे आर क्लोजली हेल्ड टुगेदर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई ये अपना फोर्स इसमें डाल रहा है, ये अपना फोर्स इसमें डाल रहा है, इसलिए दोनों चिपके हुए हैं। ऐसे ही करके सारा जो शेप है वो सारी चीज चिपकी हुई है एक दूसरे से। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ लिक्विड इज मीडियम, मीडियम है तभी फ्लो कर रहा होता है वो। ठीक है, और मिनिमम देयर इज नो इंटर पार्टिकल फोर्सेस, मतलब नेग्लिजिबल आप समझ सकते हैं इन द कंसर्न ऑफ गैशियस। नाउ डेंसिटी, डेंसिटी इज समथिंग व्हिच इज वेरी मैक्सिमम, लाइक कम शेप कम एरिया में बहुत ज्यादा चीज है, ज्यादा चीज है। तो वही चीज है ना कि इतना सा एरिया इसमें सारा भरा हुआ है सॉलिड में, इससे ज्यादा कम भरा हुआ है लिक्विड में, और सबसे कम भरा हुआ है गैशियस में। ठीक है, तो वही चीज बता रहा है मैक्सिमम, मीडियम एंड मिनिमम, ये चीज हो गया। फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज नेग्लिजिबल, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन एंड इट इज मैक्सिमम। ठीक है, मूवमेंट जो कैपेबिलिटी है वो मैक्सिमम है इन टर्म्स ऑफ दिस। फाइन, तो ये समझ में आ गया होगा आपको अभी तक जो भी मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ये जो आप डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली गो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं या बता रहा हूं अभी। ठीक है, फिर इसके बाद अभी देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम। नाउ नाउ द कन्वर्जेंस ऑफ मैटर, नाउ कन्वर्जेंस ऑफ मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, कन्वर्जन ऑफ मैटर, इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ देयर इज अ फोर्थ स्टेट कॉल्ड प्लाज्मा विच यू नीड नॉट टू रिमेंबर, बट आपके कान में होनी चाहिए। आपके कान में अगर चीजें हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी ना, नहीं समझ में नहीं आएंगी डेफिनेटली, प्लाज्मा आपकी सिलेबस में है नहीं 10th में, ये जस्ट मैंने आपको मेंशन किया है क्योंकि इट इज आल्सो देयर कि एक और स्टेट एग्जिस्ट करती है, फॉर जनरल नॉलेज यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ रिमेंबर, सॉलिड से मुझे लिक्विड में लाना है तो आई नीड टू ऐड एनर्जी, आई नीड टू गिव सम एक्सटर्नल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर सॉलिड है कोई भी चीज है तो उसको मैं लिक्विड में लाना चाहूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइस कैंडी इज इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड, फॉर दैट आई हैव टू गिव एनर्जी, हीट देनी पड़ेगी मुझे उसको लिक्विड में लाने के लिए। फाइन, अभी लिक्विड में आया, नाउ लिक्विड में आया, लिक्विड को गैशियस में लाने के लिए मुझे क्या करना है, और हीट करना पड़ेगा, मुझे उबालना पड़ेगा पानी को डेफिनेटली, तब जाके मुझे गैशियस स्टेट मिलेगा, वेपर मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज है, और गैशियस से आपको प्लाज्मा स्टेट में जाना है जो कि आपके नियॉन लाइट्स वगैरह में होते हैं, तो वहां पर जाने के लिए आपको और एनर्जी डालनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट यू टू टेक अ नोट आउट ऑफ इट। अभी ध्यान से सुना मैं जो भी चीज बताऊंगा। नाउ ये सारी कन्वर्जन जो है उन सब का नाम ना एक एक नाम है। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड समथिंग। नाउ अगर आपको लिक्विड से गैशियस में जाना है तो ये द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। डेफिनेटली इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, लिक्विड से इवेपोरेट हो रहा है तो गैस गैस बन रहा है, तो वही चीज है। और गैशियस स्टेट से आपको लिक्विड स्टेट में आना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। फाइन, ये प्रोसेस के नाम है। नाउ सॉलिड से लिक्विड में आना तो दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, फ्रीजिंग डेफिनेटली। और फिर लिक्विड से आपको सॉलिड में जाना है, लिक्विड से आपको सॉलिड में जाना है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, आई बेग योर पार्डन। एंड आपको सॉलिड से मेल्टिंग लिक्विड में आना, दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। डेफिनेटली आप फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग आप जानते हैं, ये बहुत सिंपल सी चीज है। नाउ हियर कम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। हालांकि दोनों चीज को सब्लिमेशन भी कहा जाता है, एनसीईआरटी में दोनों चीजों को सब्लिमेशन दे रखा है, बट इट्स ओके, यू नीड टू रिमेंबर बोथ द थिंग। नाउ सॉलिड से आपको गैस करना है, लाइक फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन बॉल्स जो आपके वॉशरूम में पड़े होते हैं, नाउ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। एंड आपको गैशियस से सॉलिड में आना, दैट इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। फाइन, ये चीज समझ गए आप। ठीक है, लेट अस सी फॉर दी इसके जो भी हमारे जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो चीज जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो अभी कन्वर्जेंस ऑफ मैटर कि क्या क्या है, लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में क्या क्या कन्वर्जन। सबसे पहले फ्रीजिंग, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड वाटर चेंजिंग टू सॉलिड आइस इज टर्म्ड एज फ्रीजिंग। जो सॉलिड आइस बनता है उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, और फिर द टेम्परेचर एट विच इट अकर्स इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है वो। ठीक है, फिर उसके बाद मेल्टिंग, मेल्टिंग द प्रोसेस इन विच अ solids change to a liquid is called melting. The melting point is a temperature at which the solid changes to liquid. Definitely 0 degree मतलब जो आप that threshold value
where the solid will start turning into liquid, which is called as melting. Freezing and melting again आप जानते हैं, it's very simple to understand. लिक्विड एंड गैसेस के बीच में जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. वेपराइजेशन. नाउ वेपराइजेशन नाम से ही आप समझ सकते हैं लिक्विड को हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं. द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड बॉइल्स and changes to a gas is called vaporization. The temperature at which a liquid boils is its boiling point. 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस पे अपना पानी उबलता है. नाउ पानी से लिक्विड स्टेट से आप गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड एज, और दैट कन्वर्जन इज कॉल्ड एज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन. डेफिनेटली ये भी आप जानते हैं. यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड मेक अ नोट आउट ऑफ इट गाइस. Condensation. Now, condensation, the process by which the substance changes from gaseous phase to the liquid phase is known as the condensation. Now, the rain phenomena, आप जानते हैं, वेपराइज बन के बादल बनता है, फिर कंडेंस होके पानी गिरती है, बारिश होती है. ये इन अ नटशेल मैंने बताने की कोशिश की है कि बारिश कैसे होती है, आप जानते हैं. तो व्हाट इज द प्रोसेस? The process is called as condensation. Definitely, right? So यही चीज है, condensation बताने की कोशिश कर रहा है. Solids and gases, उसमें sublimation देखो. The transition of the solid phase to a gaseous phase without passing the intermediate liquid phase is known as sublimation. मतलब solid से liquid ना जाए, सीधा gaseous में जाए, the process is called as sublimation. ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई. You can definitely go ahead and take a screenshot out of it if you want to. Fine. Next, there are something which you need to remember at this time, जो कि मैंने नहीं पढ़ा है, जो कि पॉइंट है. When solids reach their melting point, what do they become? ये चीज क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सॉलिड ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड व्हेन दे रीच देयर मेल्टिंग पॉइंट. यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तब से. व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? Boiling point is defined as the temperature at which the pure liquid changes into a gas, that is 100 Celsius, 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मतलब 0 डिग्री के अंदर जाओगे तो आप मतलब वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है. आइस जो फ्रीज होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, राइट? सो ये चीज है. What is the process in which solids directly transform into a gas? Sublimation is defined as the process in which the solid state changes to a gaseous state without changing into a liquid state. Okay, sublimation is the process. What is evaporation? When the liquid gets converted to gas at all the temperature, it is known as evaporation. Fine. ये चीज आप समझ चुके हैं अभी तक. जो भी चीज मैंने बताने की कोशिश की है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट? फिर उसके बाद देखो, here we finish the states of matter. I think कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी. फाइन. अभी तक जो भी मैंने बताने की कोशिश की है वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी. मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द थिंग. नाउ guys, these 10 to 15 minutes will give you more sufficient knowledge in AFCAT examination. Now you do not need to study thoroughly अलग से बैठ के, लाइक आपके पॉलिटी हो गया या जीएस जो भी है उसके हिसाब से आपको बैठ के रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. नाउ व्हाई? बिकॉज यू हैव स्टडीड टिल 10th स्टैंडर्ड एज अ साइंस सब्जेक्ट. ऑल दिस थिंग इज जस्ट टू ब्रश अप योर नॉलेज. फाइन. सो आई वांट टू गिव यू दिस होमवर्क. You have to tell me in the comment box what is the melting point of the water. Fine. Second question. Which of the following is a physical change? Oxidation, displacement, sublimation, reduction. Now you have to tell me. Now, एक fact बताऊं आपको. Now this is a question which was asked in AFCAT 1 2021 examination. This was the question. Now tell me, if it took you hardly 2 to 3 minutes for you to understand this topic, how much time is required you to understand this topic? Hardly 1 or 2 minutes. Now this 1 or 2 minutes is going to give you 3 marks, crucial 3 marks. Oxidation is the gain of oxygen when chemical reaction is going on. Definitely I have not teach you this, but it will be coming in the next upcoming lecture. Displacement reaction is a type of reaction. तो ये भी गया, ठीक है. Oxidation भी नहीं है. Reduction, when the reaction gains the hydrogen or loses oxygen, that's called as reduction. Sublimation is the right answer. ठीक है, sublimation is the right answer. फाइन. ये आपका राइट आंसर है. कलर चेंज कर देते, इज द राइट आंसर. ठीक है, सब्लिमेशन वही चीज मैंने बताया ना आपको कि आप जो फिजिकल चेंज है दैट्स कॉल्ड एज सब्लिमेशन. अभी तक आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी गाइस. So this was it about the states of matter. Okay,
I've tried to explain you in a very simple manner कि क्या है कैसा है, ये सारी चीजें आप जानते ही, all the things which I've told you, you know. It's just that you have forgotten that thing. Now I've tried to explain you in a very good manner in this presentation. I've tried to explain you. Now आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई, आप go ahead and ask the question in the comment box. I will definitely answer you. Fine. For more, you can contact SSB Short Academy for any queries. We are launching the online paid courses for it, and we have very good educators from for now, and you can completely rely upon that for AFCAT examination. With that, I will take your leave now, and I will end this presentation and this lecture. I hope that you have understood everything. Go ahead and ask any query if you have in the number which is given in the description. And I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Don't forget to subscribe to our new channel SSB Short Plus for exclusive new videos. Also follow us on Instagram for all the latest updates. Check out a Short guide to crack SSB on Amazon. The link is in the description below.